A very good morning to all my dear students. Welcome to Logic and Philosophy online classes. So this is the second class of Venn diagram. Please आप लोग first जो मैंने class लिया था my previous video was on the first class of Venn diagram, वो ज़रूर देखें जिसमें मैंने स्ट्रक्चर से शुरू किया था, स्ट्रक्चर ऑफ ए सिलोसिज्म एंड देन फिगर ऑफ ए सिलोसिज्म, और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था फिगर को याद करने का. सो वो ट्रिक भी आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे आप लोग इजीली वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो आज इस क्लास में मैं और 2-3 एग्जाम्पल लूँगी और समझाऊंगी कि वेन डायग्राम कैसे करना है. सो ये सब एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर खुद से भी ट्राई करें और प्रैक्टिस करें ताकि इजीली आप लोग वेन डायग्राम कर सकें. So the question which I have taken is OAO, second figure. This is the second figure. Okay, and this is the construction of the question जो मैंने किया है. This is according to the rule. अगर O proposition है, particular negative proposition, then this is the rule P M bar not equals to 0. अगर A proposition है तो S M bar equals to 0. अगर O proposition है, again S P bar not equals to 0 according to the second figure. See, according same ठीक है, according to the second figure. सो ये जो रूल्स है मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया है. सो आप लोग मेरे पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है. Now let us construct a Venn diagram. In order to construct a Venn diagram, we have to make 3 overlapping circles like this, S, P and M. Okay. So according to the rules of Venn diagram, पहले हम लोगों को universal proposition solve करना है. So A is the universal proposition. Let us start with A. S M bar not equals to 0. So this is the circle of S. This is the circle of M. सो M के ऊपर बार है, मतलब M को S से एलिमिनेट करना है, हटाना है. तो ये पोर्शन है M का, राइट. सो इस M को अगर हम लोग S से हटा दें तो बचता कितना है, इतना पोर्शन बचता है. ओके, सो लेट अस डायग्राम S. ठीक है, तो हम लोगों ने ए प्रोपोजिशन कर लिया, M को S से हटा दिया. ओके, नाउ द सेकेंड इज द मेजर प्रेमिस, दैट इज ओ प्रोपोजिशन P M bar not equals to 0. Which is the circle of P? This is the circle of P. This is the circle of M. So P M bar मतलब M को P से हटाना है, इस P से M को हटाना है. M मतलब इतना, इसको हटा के ये P बचता है. सो इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल तो होगा, इट इज़ नॉट ज़ीरो. ओके, सो अगर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रूल्स ऑफ द वेन डायग्राम हम लोग जाए तो फिर वी हैव टू गिव वन क्रॉस हियर. क्रॉस मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. Now what do we have to check? We have to check whether the conclusion comes under the diagram. Okay, if the conclusion comes under the premises which we have diagram, then it is valid, and if the conclusion does not comes under the premises, then it is invalid. What is the conclusion? Again, O proposition, particular negative, S P bar not equals to 0. This is S, this is P. Okay, P को S से हटाओ, this much we have to remove from the S. ठीक है, तो क्या कंक्लूजन वैलिड हुआ कि क्या हम लोग P को S से हटा पाए? नहीं, हम लोगों ने नहीं हटाया. सी, वी हैव ऑलरेडी डायग्राम्ड इट. ओके, सो P को हम लोगों ने S से, वी कैनट eliminate P from S. That's why this diagram is invalid. This Venn diagram is invalid. ठीक है, clear? Now let us take one more question. Number 2.
AAA. Again, let us take figure 2. Okay, AAA figure 2. So figure 2, this is the figure 2. So let us write the question. Major premise is A proposition. According to the figure 2, PM bar equals to 0. Minor premise also A proposition. According to the figure 2, SM bar equals to 0. And the conclusion is also A proposition. So according to the figure 2, SP bar equals to 0. Okay. Now, according to the rule of the सिलोसिज्म, हम लोगों को पहले यूनिवर्सल प्रेमिस को सॉल्व करना है, पर यहाँ पे दोनों प्रेमिस यूनिवर्सल है। तो अगर दोनों प्रेमिस यूनिवर्सल है तो हम लोग उस प्रेमिस को सॉल्व करेंगे जिसमें मेजर टर्म ऑकर होता है। दैट मीन्स पी स्टैंड फॉर मेजर टर्म। सो हम लोग पहले इस प्रेमिस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मेक वन डायग्राम। ओके, सो first P M bar equals to 0. This is the circle of P. This is the circle of M. So M के ऊपर बार है, मतलब M को P से हटाना है। So ये जो पोर्शन है इसको P से हटाना है। So let us diagram it. ओके, हो गया। नाउ दूसरा बी ए प्रोपोजिशन है एस एम बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये जो एस के सर्कल से एम को हटाना है। ये एस के सर्कल से एम को हटाना है। ओके, वी हैव टू एलिमिनेट एम फ्रॉम एस। ओके, तो हम लोगों ने दोनों कर लिया। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज अगेन यूनिवर्सल प्रोपोजिशन एस पी बार इक्वल्स टू 0। एस पी बार इक्वल्स टू 0, मतलब एस से पी को हटाना है। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ पी। पी को हटाने के बाद ये पूरा एस 0 होना चाहिए, पर क्या पूरा एस 0 हुआ? नहीं, ये जगह बाकी है। दैट मीन्स हम लोगों का जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस के डायग्राम में इंक्लूड नहीं हुआ, इसीलिए इट इज़ इनवैलिड। इट इज़ अगेन इनवैलिड। ओके, क्लियर? ओके, let us take some more examples. Okay, number 3, E I O, third figure. What is the third figure? MP MS, therefore SP. दिस इज़ द थर्ड फिगर। इस हिसाब से हम लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है। मेजर प्रेमिस इज ई, यूनिवर्सल नेगेटिव, MP equals to 0 according to the rule. Then I, particular affirmative, MS not equals to 0. Therefore O, particular negative, SP bar not equals to 0. ठीक है, सी फिगर के साथ मैच करके हम लोगों ने इसको लिखा है। ओके, नाउ अगेन लेट अस मेक द डायग्राम। ठीक है, सो सबसे पहले यूनिवर्सल प्रेमिस को सॉल्व करते हैं। एम पी इक्वल्स टू 0, एंड विच इज एम पी? दिस इज एम, दिस इज पी, एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ एम पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एम एस नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज एम,
this is S. This is the portion of MS and it is not equal to 0. So cross sign because it is not equal to 0. Now let us see conclusion दोनों premise के अंदर आता है कि नहीं. What is conclusion? O proposition SP bar not equals to 0. This is S. This is P. P को S से हटाना है because it is P bar. P को S से हटाना है. So P को अगर हम लोगों ने S से हटा दिया, okay, so ये जो पोर्शन है S का, दिस इज द पोर्शन ऑफ S. ओके, तो क्या ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है? दिस इज द पोर्शन ऑफ S. क्या ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है? येस, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस मार्क है. दैट मीन्स द आंसर इज वैलिड क्योंकि जो कंक्लूजन है वो ऑलरेडी प्रेमिसेस के डायग्राम में पड़ता है, इसीलिए द आंसर इज वैलिड. ओके, now let us take one more example. A. First figure. What is the first figure? This is the first figure. So इस हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन लिखना है. A M P bar equals to 0. Again A S M bar equals to 0. Therefore A S P bar equals to 0. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया. See, according to the फर्स्ट फिगर MP SM SP, यहाँ पे भी MP SM SP. बार इसलिए आया क्योंकि we followed the rule of Venn diagram. Okay, so let us draw. मैं पेन से कर रही हूँ, आप लोग एग्जाम में प्लीज कंपास यूज करें. सो दोनों ही यहाँ पे मेजर प्रेमिस है, दोनों ही यहाँ पे यूनिवर्सल प्रेमिस है. सो हम लोगों को वो प्रेमिस यूज करना है जिसमें मेजर टर्म हो, दैट इज P. सो MP bar इक्वल्स टू 0. M P को M से हटाना है. सो दिस इज द पोर्शन ऑफ P विच इज कमिंग अंडर M. सो इस P को M से हटाना है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रेमिस इज SM bar इक्वल्स टू 0. SM bar, M bar मतलब M को S से हटाना है. सो अगर M को S से हटाएं, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ S. ओके, अभी देखते हैं कंक्लूजन क्या डायग्राम के अंदर आया. फिर से ये प्रपोजिशन SP बार इक्वल्स टू 0. P बार मतलब P को S से हटाना है इक्वल्स टू 0. सो अगर हम इस P को S से हटा दे तो ये इक्वल्स टू 0 आया है, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम कर लिया है. सो दिस इज 0. दैट मीन्स इट इज वैलिड. ठीक है, क्लियर. सो आप लोग भी घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें. ओके, इट इज़ वेरी इजी. अगर आप लोग अच्छे से रूल्स याद रखेंगे तो आप लोग आराम से वेन डायग्राम कर सकते हैं. आई होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें. ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ़ यू.